2 more minutes, guys. I'm waiting for others to join in, then we'll start. Meanwhile, do you guys have any questions, any issues, any doubt, anything on things or concepts which we discussed yesterday about storage? Yes, guys, anyone, did you guys go through this? Any questions? Anything you did not understand? Okay, guys, we'll start. Yes, guys, did anyone practice? Did anyone read? Anyone of you did not understand anything? जाफर भाई, सना, जूही, सनमित्रा, सृष्टि, सुमैया, योगेश भाई, anyone of you? कल जितना हम लोगों ने किया, did you guys go through that once? And anyone who did not understand anything, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी ऐसे, जितने कॉन्सेप्ट्स या जितने टर्म्स कल पढ़े हमने उसमें से? Yeah, for me. Okay, guys, so let's start then. We'll start with storage. Yesterday we created storage account. This is the account which we created yesterday. Do you guys remember कैसा बनाया था? Or do you want me to create it again? Yes, Sohail, if you can show it once, please. Sure. I'm waiting for Amit to join. Okay. So I'll create again. Either I'll go here or I'll go home and click on create resource, or I'll find it here storage account, or I'll search it here. कहीं से भी ultimately you'll have to search a storage account. Click on that, come to this page. You'll see your existing storage accounts. You can manage them from here, or you can create new using this option. Click on create.
select your subscription, select your resource group, type a name, keep one thing in your mind that are you going to give access to all of the network, then any region should be fine. बाकी और चीजें भी consider करते हैं हम region से पहले, we have discussed that already. But if you have one particular subnet or one particular network in your mind कि बस इस network को ही access देना है, so make sure that you select the region of the same network. अगर आपको देना है, जैसे suppose हमारे पास है, let me open a new tab here. So here I have this VNet, this two VNets, right? If I have decided कि उस storage account को access मुझको सिर्फ इनमें से किसी एक VNet पे देना है, so I'll see कि ये VNet कौन से location पे है, and I'll make sure कि मेरा storage account उसी location पे बनाऊं मैं. So these both of them is in our East US. Okay, so यहाँ पर अगर आता हूँ मैं East US. Here if I select West US or anything other than East US, तो आगे जाकर मुझको वो पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क नहीं दिखेगा जिसको मुझको एक्सेस देना है. सो हियर आई एम सेलेक्टिंग ईस्ट यूएस. दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे कि जनरल पर्पस V2 में क्या है. दिस इज पेंडिंग, दिस विल डिस्कस टुडे. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. This I already explained. Required secure transfer for REST API, what it is. Could one of you explain who were there yesterday? That when will I check this and when will I uncheck this? Yes, guys, who can explain this? Juhi? Yogesh bhai? I remember it is selected when our application is having APIs in it. Okay, could you elaborate a bit? Let's say that you have to explain it to your client. That what is this option? That you're suggesting something or you're planning to create one, and these are the options. But why is it there? On what basis should I select yes or no, check or uncheck? Sanmitra? I'll give it a try. This will be checked when your storage account will be accessed through some sort of API. So the data on that will be, if your application is integrated with something else, and then it will be accessed through that API. So then you'll check that option. Correct. Correct, Yogesh bhai. Same ही है दोनों का, बस elaborated था ये थोड़ा सा. Answer is correct. The next one, in enable block public access. When will I check this and when will I not check this? Jafar bhai, are you there? भाई तुम Yes, when will we check and कब उसको अनचेक रखना है, कब चेक करना है? Jafar bhai, you are on mute if you're speaking. हाँ भाई. Hmm. हेलो. Yes, now we can hear you.
Okay. So what about this enable block public access? इसका क्या मतलब हुआ? Why the storage will have the public access? So what will happen if I uncheck this? तब Oh. accessible कहाँ से होगा then? From the private IP. Great. Enable storage account, जाफर भाई, you only. इसका क्या मतलब हुआ? Enable storage account key access. If we set any kind of encryption or a lock, then we can use this option. Not literally encryption, इसका encryption से कोई ये नहीं है. ये बस access की है. Let's say that REST APIs के थ्रू भी आपको यूज करना है, तो इसका लिंक जो मिल जाएगा, लिंक के बाद तो कोई भी यूज कर पाएगा, राइट? तो टू कीप अ लॉक ऑन दैट, कीप अ चेक कि कौन यूज कर सकता है, देयर वी यूज अकाउंट की एक्सेस. मतलब जिसके पास ये की एक्सेस होगा और वही पर्सन इस आपके स्टोरेज अकाउंट को यूज कर पाएगा. ठीक है. बट भाई अगर इन काउंटर टू दैट जिसके पास में ये की होगा आप बोल रहे हैं, एंड इफ वी डिसेबल दिस एनेबल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, सो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा वहां पे अगर वो डिसेबल्ड रहा तो, क्योंकि पब्लिक एक्सेस नहीं है. ऑब्वियसली होगा. ओके. इफ दिस इज अनचेक्ड तो किसी के पास की हो चाहे कुछ भी, और इफ दैट पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सेस इट ओवर द पब्लिक नेटवर्क, तो एक्सेस ही नहीं होगा. ओके. ओके. बट अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, एप्लीकेशंस, कई एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनके थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स विद इन कंपनी में ही होते हैं. एग्जांपल के लिए आपका पेरोल वाला साइट, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एडीपी वगैरह, या कोई भी आईबीएम जैसी, जिसके 2-3 लाख एम्प्लॉइज है, उनका पेरोल के लिए तो सबका एक ही एप्लीकेशन होता है, तो उसके 2-3 लाख यूजर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, और वो चाहता ही नहीं कि ये लोग पब्लिक में खोले. फॉरगेट, चलिए सैलरी स्लिप मे बी दे वांट कि आप पब्लिक के लिए भी खोल लो, डाउनलोड कर लो. टू चेक योर रोस्टर, मे बी देयर इज अ साइट, और to check your roster, or maybe to mark your attendance, there is a site, right? ऐसा कुछ हो सकता है. तो उस तरह की वेबसाइट को वो चाहता ही नहीं है कि आप लोग इसको पब्लिक में ओपन करो, तो ये अनचेक होगा. और उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि लिमिटेड लोग ही ओपन करें इसको, राइट? पेरोल वाला है, उसको मैं नहीं चाहूंगा कि हर कोई ओपन करे. किसी डिपार्टमेंट को सैलरी स्लिप, हम मे बी वेंडर्स को सैलरी स्लिप ईमेल पे भेजते हैं, किसी डिपार्टमेंट को किसी और तरीके से देते हैं, सो नॉट एवरीवन शुड बी एबल टू एक्सेस. वो भी नहीं होना चाहिए, राइट? सो उस केस में ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा. गॉट इट भाई. And this I already told you how it works. This one I have already explained कि आप लोगों को इसको समझने की जरूरत नहीं, but remember the latest version पूछा जाता है कई बार. TLS का कौन सा वर्जन आपके स्टोरेज में यूज हो रहा है, बहुत बार पूछते हैं, so 1.2 पे आप स्टिक रहो. ठीक है. Data lake storage, not our job. Allow cross tenant replication, we'll see this later. Access tier, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देखेंगे. इसमें एक और होता है, this is hot, cool, and which one is there? Who was there? I think Jafar bhai, you were there in last sessions, right? कौन सा है एक और इसमें? previous batch में हमने इसको अच्छे से explain किया था. hot, cool और एक और था, if you remember. चलो, no problem, जब when we'll discuss तब हम इस पे आते हैं. ठीक है. then networking, no part के sorry, नो मैटर वहां पे आप लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है, यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया है, ये वाला जो सेक्शन है, ये सेगमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर यहाँ पर आपने पब्लिक एक्सेस सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इनेबल पब्लिक ब्लॉब पब्लिक एक्सेस सेलेक्ट कर रखा है, की भी एक्सेस कर रखी है, किसी को की दे भी रखा है आप लोगों ने, बट यहाँ पर आके आप लोगों ने नेटवर्क एक्सेस में डिसेबल कर दिया, so that person who has that key still will not be able to access it over the public internet, over the public network. Why? Because network level पे आप लोगों ने इसको ब्लॉक कर दिया. Are you getting it, guys? Anyone who is not getting it, who is not understanding it? Okay. So यहाँ से there are 3 options. One is you enable public access from all networks. इसमें आपका private by default cover हो जाता है. There's one which you can enable public access
from selected virtual networks and IP addresses. And here it is, यहाँ पर आप अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप अपना VNet सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर वो सबनेट सेलेक्ट करोगे जहां से यू वांट के आपका स्पेक्टेटर्स या आपके यूजर्स इस स्टोरेज को यूज कर पाए. If you do this and if I have that link and I'm trying to access that from my home computer, I will still not be able to do that. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक एक्सेस सेलेक्ट कर भी रखा है, बट यहाँ पर आके हमने उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि बस इसी पर्टिकुलर नेटवर्क से, इसी नेटवर्क से जो है, इस नेटवर्क से कोई आ रहा है, only those resources can access my storage. Is it clear, guys? Yes. Yes. Okay. So as of now, we are going with internet access, the complete one. We'll go with internet routing. Click on next. हाँ, इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं. Yesterday I just created without discussion. इसको आज हम डिस्कस करके क्रिएट करते हैं. Enable point in time restore for containers. अब when it comes to containers क्या है exactly storage में, we'll see that. ठीक है. So ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, user point in time restores one or more container to an earlier stage. If point in time restore is enabled, then the versioning change, let me show it to you, and blob soft delete must be enabled. So let me show it to you guys के versioning क्या होता है, so you will understand it well. So guys, if you see this one, ये या कोई भी इस तरह का, ये वाले this ये काफी बार चेंज होता रहता है. इसकी डिटेल्स अगर आप देखते हो ना, और इसमें कोई चेंज आप करते हो तो इसका वर्जन में चेंज आ जाता है कि इसका डे 1 मैंने कोई सिलेक्ट किया होगा ना, तो इसका होता है वर्जन 1. उसके बाद आप कुछ अपडेट करोगे, हो जाएगा वर्जन 2. मैं कुछ उसमें से डिलीट करूंगा, हो जाएगा वर्जन 3. इस तरह से ये पूरा इसका वर्जन बार बार चेंज होता रहता है. द मोमेंट यू मेक एनी चेंजेस हियर, इसका वर्जन यहाँ पर कहाँ पर, कहीं पर दिखता होगा इसका वर्जन. बट इफ यू सी सारे कमेंट्स वगैरह हर चीज जो है, सो इफ आई क्लिक ऑन एनीथिंग, यहाँ पर किसी भी स्टेज पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर वापस जा सकता हूँ. इफ आई वांट के यार ये 4-5 चेंजेस हो चुके हैं बट आई डिड नॉट वांट देम, आई कैन क्लिक हियर और मैं उसको पूरा रिस्टोर कर सकता हूँ उस फाइल को वहां पर. दैट इज व्हाट अ वर्जनिंग इज. मतलब पूरी फाइल डिलीट और इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है. जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, हर एक चेंज के बाद एक वर्जन जो है इसका चेंज हो, एक वर्जन जो इसका बढ़ जाता है. द मोमेंट एक वर्जन चेंज हो जाता है, इसका एक वर्जन बढ़ जाता है, you get an option that you can go back to the original version or the previous version. That is what the versioning is. Let me see, यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या इसका वर्जन? Okay, it's not here. Maybe जब when we open it Google Drive, वहां से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम भी आ जाता है stating version, और उसमें लिख कर आता है वर्जन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. मतलब जितने भी चेंजेस आप करते रहो वो यहाँ पर उसका वर्जन दिखाई देता है. एंड दिस इज नथिंग स्पेसिफिक टू गूगल ड्राइव वगैरह, कहीं पर भी वर्जनिंग ऐसे ही चलता है. wherever you just hear this term versioning, understand कि इसी तरह से होगा. So if you select this one, enable point in time restore for containers, तो कंटेनर्स में जो भी चेंज होगा उसका एक एक वर्जन ये बनता रहेगा. ना व्हाट इज कंटेनर वो हम देखने वाले हैं बाद में. कंटेनर क्या है, ब्लॉब क्या है, ये सब हम देखेंगे. ठीक है. बट अंडरस्टैंड, इफ यू
क्लिक दिस तो आप ये हो जाएगा कि उसका वर्जनिंग चेंज होते होंगे। सी यहाँ पर ये क्लियरली बोल भी रहा है, उसके वर्जन्स बनते होंगे, एंड देन यू विल हैव एन ऑप्शन कि आप किसी भी प्रीवियस वर्जन पे जाकर रिस्टोर कर सकते हो डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई यहाँ पर कोई वेबसाइट थी, मैंने छोटे मोटे से उसमें कोड में चेंजेस किए, कुछ चेंज किया और बाद में मुझको फीडबैक आ रहा है काफी यूजर से कि यार ये ठीक से नहीं चल रहा है, पहले ही वेबसाइट अच्छा था, बढ़िया था, व्हाटएवर इट वाज, और फॉर सम रीजन वी डिसाइडेड कि वापस हमको प्रीवियस वर्जन पे जाना है, तो इट्स सिंपल 1 and 2 clicks, I could do that, or we'll be back to our previous version of website. So that is what it is. Enable soft delete. I hope you understand, every one of you, what the soft delete is. सॉफ्ट डिलीट कुछ नहीं है, सेम जो हम यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे कोई अगर फाइल है, सपोज कुछ है, मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, लेट्स से इफ आई क्रिएट न्यू फाइल, आई राइट समथिंग, कुछ मैंने लिख दिया, सब कुछ कर दिया, एंड मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया, एंड देन आई रियलाइज कि यार इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, सो व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? Now what option do I have to get that note back? No, that notepad Restore back. it from the recycle bin. Sorry. Restore Yes. it from the recycle bin. Recycle exactly. Because soft delete is enabled on my computer पहले से by default होता है हर एक पे, unless you go ahead and disable it, तब एक वो अलग चीज है कि soft delete आप रखते ही नहीं हो, ठीक है? So that is what a soft delete is. I hope you guys are getting it. Soft delete, इसमें भी soft delete का मतलब वही होता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉब आपने डिलीट कर दिया। नाउ अगेन व्हाट इज ब्लॉब, व्हाट इज कंटेनर, ये सब हम देखने वाले हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अंडरस्टैंड दीस टर्म्स। इसके आगे ये क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। सॉरी वैसे ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफी आप पढ़ के भी समझ सकते हो। सो इनेबल सॉफ्ट डिलीट अगर आप कर देते हो और कोई चीज को डिलीट कर देते हो तो वो 7 days तक डस्टबिन में पड़ा रहेगा, एज्योर के डस्टबिन में। सो नाउ लेट्स से हियर इफ आई हैव दिस इज माय स्टोरेज अकाउंट, okay, and I have a data of a giant data of 1 TB, let's say 1 TB बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, चार्जेस वगैरह। फॉर सम रीजन वी हैव डिसाइडेड, क्लाइंट हैज डिसाइडेड कि ठीक है हम लोगों को नहीं चाहिए डेटा, इसका काम हो गया, सब कुछ हो गया, इट्स एवरीथिंग हैज बीन डन, और काफी अननेसेसरी का बिलिंग हो रहा है, यू गाइस डिलीट इट। और आप लोगों ने पूछना भूल गया कि सॉफ्ट डिलीट इनेबल रखते हुए डिलीट करना है या कैसे है, एंड यू डायरेक्टली डिलीटेड इट। उससे क्या होगा, द मोमेंट नेक्स्ट डे क्लाइंट आएगा, यार एक्चुअली वी डिडंट हैव टू डिलीट, या फिर हमको उसमें से कुछ और रिट्रीव करना है, कैन यू प्लीज गेट इट बैक। इफ सॉफ्ट डिलीट वाज नॉट इनेबल्ड, इट इज गॉन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और अगर आपने बिना पूछे सॉफ्ट डिलीट इनेबल कर लिया, सो टेल मी वन थिंग गाइस, यहाँ पर 1 TB का आपको चार्ज लग रहा है, ठीक है, स्टोरेज का 1 TB का चार्ज लग रहा है आप लोगों को फिलहाल यहाँ पर, बिकॉज यू आर यूजिंग इट एंड यू डिलीट इट विथ सॉफ्ट डिलीट ऑप्शन इनेबल। सो व्हाट डू यू थिंक, 1 TB का चार्ज लगना बंद होगा या नहीं होगा? सॉफ्ट डिलीट इनेबल रख के आपने डिलीट कर दिया उसको, लगना तो चाहिए because the data It will should still be. not charge. no, it will charge. See, because ultimately it is not leaving the cloud space. ये क्लाउड है आपका, ये आपका विजिबल, ये यहाँ से कुछ आप सर्विसेज दे रहे थे, कनेक्ट वगैरह हो रहा था, आपने डिलीट कर दिया विथ सॉफ्ट डिलीट, वो कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ से जाके किसी कोने में यहाँ छोड़ दिया, हाँ एक्सेस वगैरह उसका वो सब बंद कर दिया, बट स्टिल यू आर यूजिंग अज्योर का स्टोरेज का 1 TB का डेटा आप यहाँ पर यूज कर रहे थे, अगेन स्टोरेज का 1 TB का डेटा यहाँ पर यूज कर रहे हो। Is it clear, guys? Is there anyone who did not Yes. understand this? What about others? Are you guys getting it? Any confusion? Sumaya, are you getting these concepts? Srishti, Yes, sir. Amit, Yes, it's clear. ठीक ठीक है, तो ये हुआ enable soft delete. The next है enable soft delete for container. I believe I don't have to explain again what is soft delete, right? Now what is blob and what is container, ये हम अलग से ये करने वाले हैं, सीखेंगे, बट सॉफ्ट डिलीट होता है, चाहे वो इन्हें इसके लिए कर दो या उसके लिए, enable soft delete for share, सेम चीज है, सॉफ्ट डिलीट एग्जैक्टली सेम चीज है, दैट यू कैन
रिटेन इट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसका 7 डेज होता है, इसको आप बढ़ा सकते हो, इसको आप 14 डेज भी रख सकते हो, ठीक है 21 डेज भी रख सकते हो। इसका मैक्सिमम कितना है आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। Set the number of days that blob mark delete person until it's permanently deleted. 365 आई थिंक बहुत 365 डेज से ज्यादा कौन रखेगा वैसे भी सॉफ्ट डिलीट में, इतना चार्ज कोई नहीं पे करेगा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है हमारे पास, बट एज ऑफ नाउ आई एम अनचेकिंग दिस बिकॉज व्हाट हैपेंस देन इफ आई क्रिएट समथिंग और वो सॉफ्ट डिलीट में चला जाता है ना, तो फिर हम स्टोरेज अकाउंट डिलीट ही नहीं कर पाते, बिकॉज इफ समथिंग इज देयर इन योर सॉफ्ट डिलीट यू कैन नॉट डिलीट योर स्टोरेज अकाउंट। ओके, इनेबल वर्जनिंग फॉर ब्लॉक, व्हाट आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। वर्जनिंग होने से क्या होता है, चेंज फीड लीव इट, लॉग्स को हम फिलहाल डिलीट कर देंगे। इनेबल ये हम बाद में देखेंगे, ये सारे जो है एडवांस ऑप्शंस है। इंक्रिप्शन इसको हम बाद में देखने वाले हैं। इंक्रिप्शन जब एक बार पूरा टॉपिक देखेंगे, इंक्रिप्शन हर जगह एक ही होता है, बट आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा जब मैंने डिस्क एक्सप्लेन कर रहा था दैट टाइम आई एक्सप्लेन कि इंक्रिप्शन कैसे वर्क करता है। सेम इंक्रिप्शन इसमें भी है, वही की वाला कॉन्सेप्ट, सब कुछ एग्जैक्टली सेम। सो इंक्रिप्शन वर्क्स इन द सेम वे। Then we have, that is fine, we're leaving this one also. Tags we have already discussed, review, and we can create here. Once this is created, now we will see कि इसको access कैसे होता है, जैसे हम चीजें चेंज करेंगे, नेटवर्क चेंज करेंगे तो हाउ विल इट इम्पैक्ट, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये सॉफ्ट डिलीट वाला जो हमने पेज पढ़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। TLS वर्जन you won't have to understand but you'll have to remember, कौन सा TLS वर्जन यूज होता है वो याद रख लेना बस आप लोग। उसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, डिफरेंसेस भी कोई नहीं पूछेगा ज्यादा, और अगर कोई पूछता भी है सो यू गाइस सिंपली से दैट हम लोगों को तो लो लेवल डायग्राम आता था, वी यूज्ड टू गेट अ लो लेवल डायग्राम एंड इंक्रिप्शन लेवल, TLS वर्जनिंग लेवल, एवरीथिंग वो जो है आर्किटेक्ट लेवल पे ही डिसाइड होके आता था। आवर जॉब वाज टू इम्प्लीमेंट कि यहाँ पर ये वर्जन दिया है, वी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दैट। So this is how it looks. Okay. Now under one storage account, there are different types of storage which we get. Storage account जो है एक सर्विस हो गई पूरी, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट में डायरेक्टली कोई जाके हम कोई अपना फाइल वगैरह सेव नहीं कर रहे। स्टोरेज अकाउंट में देन वी हैव डेटा स्टोरेज वेज यू कैन से, और उसका एक स्पेसिफिक नाम अगर हम ढूंढे तो व्हाट इज इट, लेट मी, सर्विस यू कैन से। ये जो है सर्विस है, इसकी स्टोरेज में सर्विसेज कौन कौन सी है। सो विच आर द सर्विसेज हियर वी हैव, वन इज कंटेनर, one is file share, one is queue or queues, one is tables. Okay, this is वो इंग्लिश वाला लॉजिक इसमें नहीं लगाते हैं, राइट। क्यूज और टेबल्स है, बट दिस इज वन सर्विस, दिस आर नॉट मल्टीपल टेबल्स की हम कोई बात नहीं कर रहे। टेबल्स एक सर्विस है, क्यूज एक सर्विस है, फाइल शेयर्स एक सर्विस है, कंटेनर्स एक सर्विस है। सो देयर आर 4 सर्विसेज, जिसमें क्यूज को हम नहीं पढ़ने वाले हैं ज्यादा, ये एक्सचेंज वगैरह जो ये करता है डील, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, MS365 वगैरह, उनके काम में आता है ज्यादा। टेबल्स बहुत कम पढ़ेंगे, फाइल शेयर एंड कंटेनर्स को ज्यादा पढ़ेंगे। फाइल शेयर बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ेगा इसको हम लोगों को, मे बी एक सेशन में ही खत्म हो जाएगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वी विल बी स्पेंडिंग ऑन कंटेनर्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ कि हम जहां वहां पर पढ़ रहे थे दैट इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब, तो ब्लॉब क्या है, फाइल शेयर क्या है। फाइल शेयर के लिए था, इफ यू गाइस रिमेंबर, लेट मी गो बैक देयर,
This is pending. This one we have to discuss. Sorry guys. Right. So blobs, containers, file share, यहाँ की बात कर रहा है ये, file share, tables, containers. ठीक है. Did anyone see blob here? Blob दिखा किसी को अब तक यहाँ पर? Because blob will be created यहाँ पर, इसके आगे जो है कंटेनर के अंदर आप ब्लॉब बनाते हो. So are you guys getting it कि यहाँ पर जब अगर वो बोल रहा है ये पूरे कंटेनर पे अप्लाई हो रहा है कि आपको कंटेनर का भी सॉफ्ट डिलीट चाहिए या नहीं चाहिए. ब्लॉब्स जो है कंटेनर के अंदर होते हैं, तो आपको सेपरेटली, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ. स्टोरेज 1. दिस इज अ ब्लॉब नाउ. ये सारे ब्लॉब्स हैं, ये एक ब्लॉब है. ठीक है. तो मुझको इस लेवल पे भी सॉफ्ट डिलीट पॉलिसी चाहिए या डायरेक्टली सिर्फ कंटेनर लेवल पे चाहिए? दिस इज माय कंटेनर नाउ. इफ आई गो हियर, दिस इज माय कंटेनर. तो कंटेनर लेवल पे चाहिए, ब्लॉब लेवल पे चाहिए, किस तरह की आपको पॉलिसी चाहिए? And now if I upload a blob, blob का definition वैसे, who can tell me blob's definition? We read it here कल वाले section में. What is a blob? Yes guys, what is a blob? Is referred to data, binary data, which is in format of like images and small files. Yes, you can say. In short word, your blob is a folder. Simplest अगर आप लोगों को याद रखना है तो blob is a folder, और बाकी technical definition चाहिए blob का, तो blob is I think binary large object. That is what a blob is. और यहाँ कहीं होगा इसका और detailed definition कि exactly blob क्या है. But layman term में अगर आपको blob याद रखना है तो blob is nothing but a folder. हाँ ये रहा. Blob, binary large object which is accessible using HTTP and HTTPS. Simple, इतना ये blob, nothing else. Blob is a folder. Container आपका एक drive है समझ लो. अगर आप लोगों को local computer वाले इसमें language में ये करना है. So let's say this is my container. This is my container. And these are blobs. Inside जो है ये, these are blobs. Clear? These are blobs. Clear guys till here? Anyone has any doubt? If not, I'll create one blob here again. और उसमें एक फाइल अपलोड करके देखते हैं. We'll use that access and we'll see if all of you are able to access this. ठीक है. So till here we created storage account. Everything is done. I go here, I select my storage account. This is the storage account we created. Storage V2. Now what is this? We have already read. Make sure guys you read this again. इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो. इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि V2 में क्या डिफरेंस है, V1 क्या है. So V2 क्या क्या सपोर्ट करता है, V1 क्या सपोर्ट करता है, ब्लॉब स्टोरेज क्या सपोर्ट करता है. ये सारा इतने टेबल को एटलीस्ट फ्रॉम हियर टिल हियर
read it thoroughly, then only you will understand it. But generally we use v2. So I go here to container. These are two existing containers I have. I'm creating a new container. I'll name it test tsoft test container. This is what I'm naming. If I keep it private, no matter मैंने पूरे account पे क्या select किया था, this will be private. ठीक है, तो I'll have to make sure कि मैं इसको भी publicly ये करूं. ये बन गया मेरा एक कंटेनर, tsoft कंटेनर. Okay. Within this, I will create, guys, if this finishes, I'll rejoin the session. We'll restart the session using the same link immediately without any break. I'm uploading something here. If there is any existing